السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، گزشتہ شو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ داعش، جس کو آئیسس بھی کہا جاتا ہے اور اسلامی امارات کی تنظیم بھی کہا جاتا ہے، ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اور احادیث پاک کے مطابق یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ کثرت سے قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ان کے تہبند ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، یہ سر منڈائیں گے کثرت سے، اور جب آپ ان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ ان سے بہتر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ خوارج ہوں گے اور ان کو احادیث پاک میں جہنم کا کتا بھی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو کس نے بنایا؟ یہ اچانک کیسے پھیل گئے؟ یہ ابو بکر البغدادی کون ہے؟ یہ تحریک طالبان پاکستان کا ملا فضل اللہ کون ہے؟ ان کے اجیت ڈیول سے کیا رابطے ہیں؟ مودی سرکار ان کو کس طرح سے پال رہی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے بہرحال ہم کو جواب تلاش کر دیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلوریڈا ایئرپورٹ پر جو کہانی ہوئی اور جس کو دبا دیا گیا اور اس کو زیادہ پھیلایا نہیں گیا، اس کو پھیلنے سے روکا گیا، یہ 6 جنوری کو اندھا دھند فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایسٹیبن سینتیاگو نامی ایک شخص تھا، اس نے ایک اعتراف کیا تھا۔ اعتراف کے بعد کہ CIA اسے داعش کے لیے لڑنے پر مجبور کرتی تھی اور جہادی ویڈیوز دیکھنے کے لیے زور ڈالتی تھی، اور اب جب اس نے یہ اعتراف کیا تو مجھے آپ بتلا دیجئے یا میں آپ کو کیسے قائل کروں کہ اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس میں آپ شک نہیں کر سکتے کہ داعش در حقیقت CIA کی پیداوار ہے، امریکن CIA کی پیداوار ہے، اور جسے عالم اسلام بالخصوص مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ CIA کا داعش سے گٹھ جوڑ سامنے آنے کے بعد اس کو، یعنی جس کا نام ایسٹیبن سینتیاگو ہے، اس کو نفسیاتی قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ وہ اگر وہاں کوئی سچ بولتا ہے تو اسے پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، تو اس سینتیاگو کو بھی نفسیاتی قرار دے دیا گیا ہے، اور مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نفسیاتی قرار دے کر آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ ایسٹیبن سینتیاگو امریکی ریاست الاسکا کا رہنے والا ہے۔ 2007 میں امریکی فوج میں بھرتی ہوا اور 2010 سے 2011 تک نیشنل گارڈ کے طور پر، یعنی اس کا ایک اہلکار تھا، عراق میں تعینات رہا۔ نومبر 2016 میں اس نے الاسکا میں FBI کو بتایا کہ CIA اسے داعش کے ساتھ مل کر لڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ FBI کو بتایا، یعنی FBI بے خبر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اجیت ڈیول کی سرگرمیوں سے را بے خبر ہے۔ را اپنے طور پر کام کرتی ہے، لیکن اجیت ڈیول ایک ایسا کردار ہے کہ جو را سے بھی زیادہ طاقتور ہے، را بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو بعد میں جب یہ انکشاف ہوا تو اسے فوج سے برطرف کر دیا گیا، اور آن لائن خبر رساں ایجنسی ہے جس کا نام انفو وارز ہے، اس کے مطابق ایسٹیبن سینتیاگو کو NBC نیوز نے شناخت کر لیا تھا، اور CBC نیوز نے بذریعہ ٹویٹ بھی آگاہ کیا تھا کہ مشتبہ حملہ آور نے FBI کو بھی آگاہ کیا تھا کہ CIA اسے داعش سے لڑنے پر مجبور کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ پہلے ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں کہ یہ فائر ہو رہی ہے، آپ کو فائرنگ کا ہم کلپ دکھاتے ہیں کہ سینتیاگو نے فلوریڈا میں ایئرپورٹ پر حملہ کیا، ٹرمینل 2 اور 3 کے درمیان۔ یہ جو ایئرپورٹ تھا یہ آڈلڈیل ایئرپورٹ تھا، اور یہاں پر باقاعدہ فائرنگ ہوئی، لوگ ہلاک ہوئے، اور اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو کلپ میں دکھائیں گے، لیکن اس کلپ کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ CIA داعش کے پیچھے ہے تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ داعش اور خوارج کون ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ 1400 سال گزر گئے، ان تمام صدیوں کے دوران بے شمار فتنے اسلام پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناک خوارج کا فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں حاوی عالم حضرت محمد
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शिद्दत के साथ अपनी उम्मत को खबरदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मशरिक की जानिब से कुछ लोग निकलेंगे, वो कुरान की तिलावत से अपने हलक तर रखेंगे, उनके चेहरे इंसानों के और दिल भेड़ियों की तरह जालिम हैं। वो घनी दाढ़ियां रखेंगे और ऊंचे तहमत बांधेंगे। ये कम उम्र और बच्चों को इस्तेमाल करेंगे, ये कम जहन लोगों को इस्तेमाल करेंगे। वो मुशरिकों से मदद लेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो खुद तो मुसल्लह बगावत नहीं करेंगे, लेकिन खवारिज की पुष्ट पनाही करते होंगे और इनके इक़दामात को सराहते होंगे। ऐसे लोगों के लिए कादिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इन्हें मैदान जंग में मिलो, इन्हें कत्ल करो। ये तमाम मखलूक से बदतरीन और जहन्नुम के कुत्ते हैं। आज हम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारे बच्चों के कातिलों को इस नाम से पुकारा जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं, दहशतगर्द नहीं, खवारिज। आप यकीन करें वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने हमारे इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके पिछले 10 सालों में पाकिस्तान को खाक और खून में नहला दिया है। आज हम उनको वो नाम दे रहे हैं जो हाजी बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तेमाल किया था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम इन खवारिज को शिकस्त नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये दहशतगर्द नहीं है, ये खवारिज हैं। ये दीन से बाहर निकाले हुए लोग हैं। इसीलिए इनको मुसलमान बनाकर जब पेश किया जाता है तो पूरे इस्लाम पर धब्बा लगता है। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कह ही नहीं सकते कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। मैं सवाल करता हूँ आज पूरी दुनिया से कि एस्टेबन सैंटियागो के इतराफ़ी बयान के बाद जब ठोस शवाहिद भी मिल गए तो इसको नफ्सियाती करार क्यों दिया जा रहा है? क्यों ये हकीकत सामने नहीं लाई जा रही? और दाइश को तश्कील दिया अमेरिका ने, ये अब कोई फसाना नहीं है, ये अब हकीकत बन चुकी है। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन, जो कि अभी उम्मीदवार भी थी, सदारती उम्मीदवार थी, इंतखाब हार गई, उन्होंने 2014 में शाया होने वाली अपनी किताब हार्ड चॉइसेस में लिखा है कि हमने मशरिक़ वुस्ता को तक़सीम करने के लिए दाइश को तश्कील दिया है। हिलरी क्लिंटन, ये उन्होंने खुद कहा है, ये उनके लिखे हुए जुमले हैं। और हार्ड चॉइसेस किताब आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि हमने दाइश को तश्कील दिया है। और अपनी किताब के एक और हिस्से में लिखती हैं कि हम ये तय कर चुके थे कि जुलाई 2013 में अपने यूरोपीय दोस्तों के साथ एक मुश्तरका इजलास में दाइश की इस्लामिक स्टेट को रस्मी तौर पर कबूल कर लें। शायद इसी वजह से वो इलेक्शन हार गई और ट्रंप आया है जो कि यकीनन दाइश को एक्सेप्ट भी करेगा और जो सीरिया में इस वक्त कार्रवाई हो रही है उसकी मजम्मत करेगा, क्योंकि सीरिया में हल्ब में जो कार्रवाई हो रही है वो दाइश के ख़िलाफ़ हो रही है। और फिर ये भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है जिसमें लिखती हैं हिलरी क्लिंटन के मैंने 112 ममालिक का दौरा किया जिनमें इस्लामिक स्टेट की तश्कील में अमेरिका के किरदार को वाज़ेह किया और उनसे कहा कि वो ऐसी रियासत तश्कील पाने के बाद फ़ौरन उसे रस्मी तौर पर कबूल कर लें। लेकिन फिर अचानक ही हमारी आंखों के सामने सब ख़राब हो गया। ये क्या ख़राब हुआ ये मैं आपको एक वक्फ़े के बाद बताऊंगा, और जब वक्फ़े के बाद मैं आऊँगा, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, तो वक्फ़े के बाद जब हम आएंगे तो वही क्लिप आपको दिखाएंगे जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि सैंटियागो ने एयरपोर्ट पर क्या किया, क्या हुआ, क्या मंजर था, ये आपको दिखाएंगे बोल की स्क्रीन पर। लेकिन पहले एक वक्फ़ा, ऐसे नहीं चलेगा।
खुशामदीद। नाज़रीन मोहतरम, सैंटियागो ने जो फायरिंग की वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देखते रहेंगे, लेकिन इस दौरान मैं आपको हक़ाइक़ मज़ीद बयान करता रहूँगा। ये एक फायरिंग की पूरी मंजरकशी है, किस तरह से उसने फायरिंग की, कैसे फायर खोला। 5 अफराद वहाँ पर हलाक हो गए थे। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मैं आपको बता रहा था, जो कि अमरीका के सदारती इंतखाब में नाकाम हो गई, हिलरी क्लिंटन। उनका ये जो जुमला था कि सब कुछ ख़राब हो गया, ये बहुत अहम जुमला था। उन्होंने कहा सब कुछ ख़राब हो गया। इससे मुराद मिस्र में जनरल अस्सेसी की जानिब से इख्वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता सदर मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत, क्योंकि इस किताब के मुताबिक, जो कि हिलरी क्लिंटन की किताब है, मेरी लिखी हुई किताब नहीं है, मेरा कोई इसमें दावा नहीं है, उन्होंने लिखा कि मिस्र में उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद अमेरिका को अपना मंसूबा तब्दील करना पड़ा। और अगरचे अमरीकी हुक्काम ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि दाइश की सरगर्मियों से वो बेखबर हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अमरीकी इंटेलिजेंस CIA गुज़िश्ता 2 सालों से उर्दू में मौजूद ट्रेनिंग के मराकज़ में दाइश के दहशतगर्दों को फ़ौजी तरबियत देती चली आ रही है। और बाज़ बयानात और रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी हुक्काम दाइश की बुनियाद रखने में भी बुनियादी किरदार के हामिल रहे हैं। 2014 में रेडियो रूस से मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात के बारे में नशर होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि दाइश का सरबरा अबू बकर अल बगदादी 2004 में इराक़ में अमरीकी हाथों गिरफ्तार हुआ था और उसे बोका जेल में कैद कर दिया गया था, लेकिन 2009 में बराक ओबामा के दौर हुकूमत में उसे आज़ाद कर दिया गया। दमिश्क के सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के नायब सरबरा ताइब इब्राहिम का कहना है कि जब दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी के बारे में ये रिपोर्ट मिली, और दरहकीकत ये रिपोर्ट मौजूद है कि वो दरअसल यहूदी है और उसका असल नाम शिमून अल यूथ है, और इराक़ में अमरीकी जेल में कैद के दौरान अबू बकर अल बगदादी के साथ अमरीकी इंटेलिजेंस और CIA ने राब्ता किया, बरकरार रखा और उसे काम करने के लिए आमादा किया, उसे तैयार किया। तकरीबन 3 बरस कबल अमरीकी सेनेटर जॉन मैकन की एक तस्वीर शाया हुई थी जिसमें वो दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी के साथ देखे जा सकते हैं, और ये तस्वीर शाम में खाना जंगी शुरू होने से पहले की है। जॉन मैकन एक शिद्दत पसंद रिपब्लिकन के तौर पर जाने जाते हैं, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और शाम पर फौजी कार्रवाई के शदीद हामी तसव्वुर किए जाते हैं। अमेरिकन रिपब्लिकन सेंटर एक ऐसा इदारा है जहाँ पर ये सारे लोग जमा होते हैं, और इन्होंने एक रिपब्लिकन सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पर दाइश की सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाता है, और इसमें कुछ ख़ास लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। मैंने आपको मैकन का नाम बताया, इसके साथ साथ सेनेटर पाल भी इसके अंदर शामिल हैं जो CNN को इंटरव्यू दे चुके हैं, और उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि अमेरिका की जानिब से शाम मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों को भारी मिकदार में असला फराहम किए जाने की वजह से दाइश बहुत मजबूत हो गई है, और दाइश जब तक शाम में थी हमारी इत्तेहादी शुमार होती थी। हमने शाम के सदर बशारुल असद की हामी क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए दाइश की भरपूर मदद की और उसे असलाह फराम किया। हमने शाम में दाइश से वाबस्ता अनासिर को एक महफूज पनाहगाह मुहैया की। CIA दाइश के पीछे है, और ये एस्टेबन सैंटियागो ने जब ये इंकिशाफ किया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, एक कोहराम बपा हो गया था, एक हैरान कर देने वाली खबर थी, सब शशदर रह गए थे, लेकिन अचानक उसको खामोश करा दिया गया और ये कहा गया कि नफ्सियाती है। और कुछ दिनों के बाद ये खबर भी शायद आप सुने, और सुनने को आपको मिलेगी कि वो हिरासत के दौरान इतना मजबूर हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली और उसने अपने आप को कत्ल कर लिया। शायद ये खबर आपको जल्द सुनने को मिले, क्योंकि दाइश के तमाम तर सबूत क़याम के CIA मिटा देना चाहती है, और CIA इसलिए भी मिटा देना चाहती है क्योंकि ऐसी क़ुव्वतें जब तख्लीक़ की जाती हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उनके तख्लीक़कारों के बारे में पता न चले। जैसे कि तारिक फ़तेह है, तारिक फ़तेह को किसने तख्लीक़ किया, तारिक फ़तेह कहाँ से आया, तारिक फ़तेह कौन है, तारिक फ़तेह क्या चाहता है, तारिक फ़तेह का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है, तारिक फ़तेह को क्यों कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी लेखक है, क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तानी पत्रकार है, या क्यों कहा जाता है पाकिस्तानी सहाफ़ी है। तारिक फ़तेह का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिवाय इसके कि इसके बाप ने इसका नाम तारिक फ़तेह रख दिया था, और इसके सिवा कुछ नहीं। हालांकि इसकी अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी है। इसने खुद कहा कि मेरे बाप ने मेरा नाम तारिक फ़तेह रखा, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बाप ने मेरा नाम क्यों रखा, काश मैं उस वक्त बोल पड़ता
नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह काश मैं बोल पड़ता तो अपने बाप को तारिक फ़तेह नाम रखने नहीं देता, लेकिन मैंने इसका प्रायश्चित यूं किया है कि मैंने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रख दिया है। ये है तारिक फ़तेह। मगर ये है कौन, ये मैं आपको एक वक्फे के बाद बताऊंगा। जब वक्फे के बाद आएंगे तो हम आपको तारिक फ़तेह की कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और उसके नशे में झूमती हुई एक आपको बात देखिएगा कि नशे में झूमता वो क्या कर रहा है। अगर अभी बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक वक्फा लेते हैं और तारिक फ़तेह को भी हम आज बताना चाहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। एक वक्फा। ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद। तारिक फ़तेह पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी, ये एक राज है, एक मुअम्मा है, न समझने का न समझाने का। कोई कहता है कि पाकिस्तानी है, कोई कहता है कि हिंदुस्तानी है। आपको मैं पहला क्लिप दिखाता हूं जिसमें एक इंडियन एंकर कह रही हैं कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन खुद बदबख्त अपने मुंह से क्या बोल रहा है ये आप बाद में सुनिएगा। पहले जरा इंडियन एंकर की जबानी सुनते। ये है प्रोपेगेंडा सेल भारत का। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसको कहते हैं झूठ, दरोगोई, किज़्ब, रियाकारी, मक्कारी, अय्यारी, और भारत इसमें चैंपियन है। यकीनन हम इससे ये एजाज़ हासिल नहीं कर सकते। आप ज़रा ये क्लिप देखिए कि भारतीय एंकर तारिक फ़तेह का तारुफ किस तरह करा रही है और फिर तारिक फ़तेह अपने बारे में क्या कह रहा है। ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिएगा। ज़रा पहले क्लिप देखते हैं। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पाकिस्तान को आईना, जब सच से हुआ उसका सामना। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को अपनी गोद में बिठाने के संगीन इल्जामों से घिरे पाकिस्तान को उसी के एक बाशिंदे ने जैसे आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार लेकिन अब कनाडा में शरण लिए हुए हैं तारिक फ़तेह साहब, जिन्होंने अपने ही मुल्क को टेररिस्ट स्टेट करार दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाने से बाज नहीं आता है। और ये वही पाकिस्तान है जिसमें भले ही गरीबी, अशिक्षा और कट्टरपंथ की नई कहानियां लिखी जाती रही हों, लेकिन जो भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों पर नर्म रहता है। पहली बार शायद एक पाकिस्तानी ने इतने कड़े अल्फाजों में जैसे अपने ही मुल्क की क्लास ली। साफ है कि पाकिस्तान अपनी ही वजह से खुद अपने और दूसरों के लिए आफत पैदा कर रहा है। आपके यहाँ तो बड़ी अमीरी है, सुबह सुबह सबको रोटी मिल जाती है। आपके तो भगवान कृष्ण मक्खन चोरी करते थे। आपके तो बहुत अमीरी है, बहुत अमीर हैं आप। आपके गुर्बत है ही नहीं, सड़क पर कोई सोता ही नहीं, रातों को फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को बसें कुचलती हुई गुजरती नहीं हैं, ट्रेनें काटती नहीं हैं, कत्ल गारत होती नहीं है, मुंबई में सबकी इज़्ज़तें महफूज हैं, बेंगलुरु में किसी की इज़्ज़त लूटी नहीं है। बड़ा प्यारा मुल्क है भारत, है ना, बड़ा अच्छा मुल्क है। मगर ये जो आपके मुंह से निकल गया टारगेट किया हुआ है आपने पाकिस्तान को। टेररिस्ट बाद में आपने कहा, टारगेट आपने पहले कह दिया। लेकिन गलती हो गई, एक चूक हो गई। ए अबला नारी भारती, आपसे एक चूक हो गई। और चूक ये हुई कि आप जो कह गई वो ये कह गई कि ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो अब कनाडा में शरण लिए हुए हैं। आइए आपको इसी शरण लिए हुए पाकिस्तानी पत्रकार की ज़बानी सुनवाते हैं। वो खुद कौन है, सुनिए। हमारे घरों से हलवा जाता था, मौलवी साहब को दे दो। अब मौलाना हमको देते हैं ज़कात का पैसा, उनको मिलता है सऊदी अरेबिया की ज़कात। रमजान के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पहुंच जाता है दुनिया की हर मस्जिद में। तो एक हिंदुस्तानी इस्लाम जो है वो अरब इस्लाम का हो गया गुलाम, और वो बहूदगी जो अरेबिया में है अगेंस्ट हिंदूज, वो आ गई इनके अंदर। तारिक साहब, दो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी किए हैं और बहुत सारे लोगों से जब मैं आपके बारे में बात करता हूं तो मोरलेस वही दो ऑब्जर्वेशन वो देते हैं कि जब आप दलील पेश करते हैं इस्लाम के बारे में या हुब्बुल वतनी, देशभक्ति या नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म के बारे में, तो दो चीजें आती हैं कि एक तो आप में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है, तजाद बहुत है, विरोधाभास बहुत है, और दूसरा ये कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीजें करते हैं। मैं बताता हूँ हाँ, बिल्कुल कि जब आप हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो दो शख्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको तो ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों को हुब्बुल वतनी का पाठ पढ़ाएं जो खुद अपने वतन के लिए मतलब देशभक्त नहीं हो सके, चाहे वो आप हो चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो। जो विरोधाभास की बात है मैं खत्म कर लूं, 2 पॉइंट जवाब दे दूं।
आपका वतन हिंदुस्तान नहीं होगा, मेरा तो है। सोनिया गांधी का हो सकता है कि हिंदुस्तान नहीं हो, मेरा तो है। नहीं, उसी से रिलेटेड मैं कह रहा हूं कि आप जो अभी कह रहे हैं कि आपने ये अस्यूम कर लिया कि इंडियन मुस्लिम पेट्रियोटिक नहीं है, आपने ये अस्यूम कर लिया। अभी आपकी जितने भी बातें आपने कही हैं, तो नहीं, मैं बता रहा हूं आपने आपके किन जुमलों में आपने कहा, आपने कहा कि वो यहाँ रहते हैं तो उनको हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो आपने अस्यूम कर लिया। अभी आपने कहा, मैंने ये वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा उनके नाम हिंदुस्तानी होने चाहिए। नहीं, आपने ये कहा कि भारत माता की जय की जब आप बात कर रहे थे। तो मैंने नहीं कहा साथ, मैंने कहा भारत माता की जय। देखें, मिसकोट ना करें। भारत में एक बहुत अरसा पहले फिल्म बनी थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अब फिल्म बननी चाहिए कि तारिक फतेह को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि तारिक फतेह से जब सवाल किए जाते हैं और तीखे और चुपते हुए सवाल किए जाते हैं तो तारिक फतेह से बर्दाश्त नहीं होता। एक तो नई इस्तिलाह ये शख्स लेकर आया है, अजीब व गरीब शक्ल का मालिक ये आदमी। वैसे किसी की शक्ल को नहीं कहना चाहिए, सबको अल्लाह ताला ने एहसन तक़वीम पे बनाया है, लेकिन जब कोई अपने नज़रिए से और अपनी माँ से गद्दारी करता है तो उसका चेहरा बिगड़ता चला जाता है, सूअर जैसा भी हो जाता है, बंदर जैसा भी हो जाता है और कभी कभी बुलडॉग जैसा भी हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तारिक फतेह को ये मालूम होना चाहिए कि अरब इस्लाम और ये हिंदुस्तानी इस्लाम, ये कौन सा इस्लाम आप लेकर आए। इस्लाम एक ही है। इस्लाम ना अरब में कोई इस्लाम अलग है, ना हिंदुस्तान में कोई इस्लाम अलग है। इस्लाम वही है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद फरमाया है और उसको फरमाया है अल्लाह ताला ने कि इस्लाम पसंदीदा दीन है, उसको लाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस्लाम वही है, शरीयत मोहम्मदी जिसको कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम उसी का नाम है। आप उससे बगावत करते हैं तो आप ये कहते हैं कि अरब इस्लाम कुछ और है और हिंदुस्तान का इस्लाम कुछ और है। हिंदुस्तान का इस्लाम भी वही है जो अरब में है, वैसे ही नमाज पढ़ी जाती है, वैसे ही ज़कात दी जाती है, वही हज है, वही रोज़े हैं और जो अरकान इस्लाम है उनमें सबसे पहले तौहीद है, उसके बाद नमाज है, फिर उसके बाद ज़कात है, रोज़े, ज़कात है, फिर हज है। ये इस्लाम के 5 अरकान हैं। अब आप अगर इसमें कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं तो फिर वो बिदअत कहलाएगी, और अगर आप बिदअती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरब का इस्लाम कुछ और है और पाकिस्तान का इस्लाम कुछ और है। तो पहले तो आप अपनी मालूमात दुरुस्त कीजिए, और आप पर जचती भी नहीं है बातें, क्योंकि खुद आपके बारे में कह दिया गया है कि आप एक चीप पब्लिसिटी के लिए हमेशा ख्वाहां रहते हैं, यानी सस्ती शोहरत के भूखे हैं आप, ये फरमाया है आपके बारे में। और अचानक आपने हाथ बातें, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये सब आप कहते हैं और ये आपसे कहलवाया जाता है। आज आपने अपने मुंह से खुद कह दिया मैं हिंदुस्तानी हूं। अब कम से कम भारत में इनको कोई पाकिस्तानी ना कहे। जो शख्स अपने आप को खुद कह रहा हो कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो उसको हिंदुस्तानी कहा जाए। आप हमारे ऊपर अपनी गिलाजत न थोपिए, अपने फुजले, अपनी बेहूदगियां हम पर न थोपें। पाकिस्तान के नक्शे में इस शख्स को तलाश मत कीजिए, इसको हिंदुस्तान में तलाश कीजिए। ये हिंदुस्तान की किसी गंदी गली में आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा और इसको उसी तरह से आप ट्रीट करें। इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। कनाडा में अगर रहता है तो ये कैनेडियन नेशनलिटी अब रखता है। पाकिस्तान में तो इसको वेलकम तो छोड़िए, ये यहाँ आने की कोशिश भी ना करे, कभी सोचे भी नहीं पाकिस्तान आने के लिए। इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि तस्लीमा नसीन बांग्लादेश में नहीं रह सकती और वहाँ पर बंगाली उसको घुसने नहीं देते हैं। ये इसकी बेइज्जती भी हुई है और ये खुलकर सामने आ गया है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। और कैसे आप इस्लाम पर बात कर सकते हैं, कैसे आप दीन के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, कैसे आपको हक दिया जा सकता है, जबकि आपका एक रूप में आपको अभी दिखाता हूं किस तरह से आप झूम रहे हैं। जब आपको मैं ये क्लिप दिखाऊंगा नशे में झूमता हुआ, जब तारिक फतेह आपको नजर आएगा तो आजहानी राजेश खन्ना को भी अपनी मौत पर अफसोस हो रहा होगा कि ये किस जगह पर चल रहे थे, कि तारिक फतेह उनके किस गाने पर क्या कर रहे हैं। जरा ये क्लिप देखिए। मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो बिजाने दिया, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो बिजाने दिया, हम ना करेंगे प्यार।
खत्म कर दी आपने सारी खाली ग्लास तो इनकी है। क्या मुसीबत क्या है? इसमें स्टोरी क्या है? अब हम इस छिचोरी बत्तख से सीखेंगे कि झील में कैसे तैरा जाता है। अब हम इससे सीखेंगे कि इस्लाम क्या है। यह हमें बताएगा कि अरब का इस्लाम और पाकिस्तान का इस्लाम क्या है। हाथ में शराब का गिलास और रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार। अबे रहने दो छोड़ो भी जाने। राजेश खन्ना, जहानी राजेश खन्ना की चिता अभी भी सुलग रही होगी ये देखकर कि मैंने किस मकसद के लिए गाना गाया था और तारिक फ़तेह उसके साथ क्या कर रहा है। वहाँ कुत्ता भी मौजूद था। अब जाहिर है कि जहाँ एक कुत्ता मौजूद होगा तो कुत्ता तो मौजूद होगा, तो कुत्ता वहाँ पर मौजूद था और कुत्ता भी चला गया वहाँ से। यानी कुत्ता भी इतना मुहज़्ज़िब था कि कुत्ते के साथ नहीं रह सका और वो कुत्ता वहाँ से चला गया। तो ये तारिक फ़तेह का एक रूप है, लेकिन तारिक फ़तेह के बहुत सारे रूप हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे, लेकिन उसके बावजूद मैं तारिक फ़तेह के कुछ रूप आपको दिखाना चाहूँगा और वो इसलिए भी दिखाना चाहूँगा कि इस शख्स की बदकलामी और बदज़बानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और कुछ लोगों से ऐसे ही बात करनी पड़ती है। तारिक फ़तेह ने कुछ दिनों पहले कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों को यहाँ पर दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए जो भारत में हुई, लेकिन आमिर खान के बारे में उसका नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो आमिर खान के लिए कहता है कि उसे सियासत में नहीं आना चाहिए, यानी भारतीय अदाकार सियासत ना करें और अपने मुल्क पर तवज्जो दें, मगर पाकिस्तानी अदाकारों पर यह लाजिम है कि जब वो भारत में काम करने आए तो ये उन पर शायद फ़र्ज़ ऐन है कि वो दहशतगर्दी की मजम्मत करें। ये दोहरा मयार है तारिक फ़तेह का। पहले आपको क्लिप दिखाता हूँ कि आमिर खान के बारे में वो क्या कह रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी अदाकारों से मुतालिक उसका क्या नज़रिया, फिर आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन ज़रा पहले ये क्लिप देखिए। तारिक सर, विजय विद्रोही दरअसल ये पूछना चाह रहे हैं कि टॉलरेंट सोसाइटी की जब बात की जाती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिहाज से अगर शाहरुख खान कह रहे हैं कि असहनशीलता है, अगर आमिर खान कह रहे हैं कि असहनशीलता है, तो उनको देशद्रोही कह देना और यहाँ पर उन पर इतने हमले होना ये भी तो गलत है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो वो कुछ अपनी बात रख रहे हैं। ऑफ कोर्स गलत है। तो मैंने कब कहा कि ये दुरुस्त है? तो मैंने कब कहा कि ये हमले उन पे दुरुस्त हैं? वो उनको पूरा हक है कहने का, लेकिन वो फिल्म स्टार हैं सर, उनका काम एक सोशल वर्कर हैं आमिर खान, उनसे आप ये क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो सियासी लीडर बन जाएं? ये भी एक अहमकाना बात है ना कि एक शख्स से आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसने अपनी ओपिनियन दी है, वो बस आगे बढ़े, बात इतना उन पर क्यों तनकीद की जा रही है? और मैंने जो कहा है वो उनका पूरा हक है आमिर खान को या उनकी बेगम को कुछ कहने को। मैं तो एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सहाफ़ी उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि मैंने पूरी दुनिया देखी को 80 मुल्कों में रह चुका हूँ, कहीं पे ज्यादा सेफ्टी नहीं है जितनी इंडिया से है। ये मैंने कोई गलत बात अगर कह दी। 80 मुल्कों में रह चुका हूँ, वो तो डॉन था जिसे 80 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ सकी थी। एक कौन है 80 मुल्कों में क्या करता रहा? इसकी उम्र भी 80 बरस नहीं होगी, लेकिन ये शख्स 80 मुल्कों में रह चुका है और रह चुका है, कहीं किसी मुल्क के अंदर भी ये टिक नहीं सका। ये है तारिक फ़तेह। तारिक फ़तेह का आपने एक रूप देखा जो आमिर खान से मुतालिक था, जो भारतीय अदाकार से मुतालिक था, लेकिन यही तारिक फ़तेह पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में क्या कह रहा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। कि हाल ही में बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अलाउड करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं अलाउड करना चाहिए। आपकी पर्सनल राय क्या है इसको लेकर? जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यानी टेररिज्म के अगेंस्ट उनको रहना चाहिए, जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो पाकिस्तान चले जाएं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कुछ लोग का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ उड़ी में, उसके बावजूद कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने धमकी भी दी है कि वो वापस चले जाए, उनको बोल दिया गया है कि आप यहाँ काम मत कीजिए, हम आपका विरोध करेंगे। कितना सही मानते हैं आप उसको? आपके हर शहर में पाकिस्तान ISI के एजेंट बैठे हैं, ये आर्टिस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। कितने हैं? 4, 5, 6, 10 होंगे। यहाँ आपके 200-300 हर मेजर शहर में, उनको तो आप रोक नहीं सकते। अमन की आशा आपकी चलती रहती है। तो हर आर्टिस्ट जो यहाँ आता है वो पाकिस्तान ISI से क्लियरेंस लेके आता है। ये आपको भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। जो वापस जाते हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ क्या होगा। बगैर ISI क्लियरेंस के, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस क्लियरेंस के, कोई यहाँ आ नहीं सकता पाकिस्तान से। तो जब आपको पता है उनको आने दिया, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट दोज हु डू नॉट लाइक इंडिया दे शुड गो टू पाकिस्तान।
लेकिन जैसे ये भी कहा जाता है कि वहाँ की जो आम जनता है वो अच्छे रिश्ते चाहती है भारत के साथ। किसने आपसे ही कह दिया? अच्छा, ये कहाँ से, क्या एविडेंस है इसका? पहली जमात से तो वो पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है वो गंदा है, झूठा है, चोर है, उसके ऊपर हम हुकूमत करेंगे। आम जनता बलूचिस्तान की और सिंधु देश की चाहती है, पश्तून बाचा खान के इलाके के जो लोग हैं वो चाहते हैं। पाकिस्तान है पंजाबी मुसलमानों का और फौज का एक अड्डा। वो तो अपनी मादरी ज़बान को नहीं मानते हैं तो किस चीज़ को मानेंगे? जो लोग अपनी हेरिटेज से शर्मिंदा हों और वो गुंडागिरी भी करते हों तो दे आर लॉस्ट कॉज। पाकिस्तान में जितने सुरक्षित यहाँ पर हिंदू हैं, शायद भारत में मुसलमान इतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। ये तारिक फ़तेह को मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि हिंदू गंदा है। हम हिंदुओं के साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं। हमारे सखर में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मस्जिद और मंदिर बिल्कुल सामने है। अभी आपके मोदी जी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करके आए थे और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने, शेख खलीफा ने वहाँ बाकायदा मंदिर बनाने के पैसे दिए। जरा कुछ शर्म करो यार। हिंदू गंदा है किसने कहा? हम तो हिंदुओं के साथ रहते आए हैं। हमने तो ये एजाज बख्शा जोधाबाई को कि उसके बतन से सलीम शहजादा पैदा हो। ये कैसे हो गया था? अगर हिंदू गंदा था तो अकबर, जलालुद्दीन अकबर ने जोधाबाई के साथ शादी क्यों की थी? और नूरुद्दीन जहांगीर कैसे पैदा हुआ? अगर हिंदू गंदा था तो फिर मुगलिया दौरे हुकूमत में बड़े वुज़रा के ओहदों पर हिंदू क्यों रहे? मान सिंह क्यों रहा एक वजीर के ओहदे पर? क्यों मशवरे किए जाते थे हिंदुओं से? ये सब बकवास और ये तारीख बेहतर है कि आप अपने तक महदूद रखिए। हम हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी हमारे भाइयों की तरह रहते हैं। हम उनके साथ उठते बैठते हैं, हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमारे साथ हैं। हम उनके मंदिरों की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तुम्हारी लगाई हुई आग कभी भी पाकिस्तान के अंदर हमारी मजहबी यगानगत को खाकस्तर नहीं कर सकती। लेकिन इस तरह की गुफ्तगू आप उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे जब आपसे आमिर खान से मुतालिक सवाल किया जा रहा था? आपने आमिर खान के लिए मशवरा क्यों नहीं दिया कि वो सियासत से दूर रहे? लेकिन जब पाकिस्तानी अदाकारों की बात हुई तो आपने कहा कि उन्हें ये करना चाहिए, यानी आप उन्हें सियासत में घसीट रहे हैं। उनसे आप चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें और आपको अपने आप पर काबू तो रहता नहीं है। न जाने आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। देखिए आप एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान क्या हरकतें कर रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। Agents like you come a dime a dozen. Let's see. Hold your tongue. No, Hold your sit down. tongue. Go sit down. You cannot accuse me. Oh, absolutely. All right, I'm the journalist here. Oh, you're not a You are journalist. the wise. You are I'm not a not journalist. You're You're not a journalist. You accused him of being a I'm lawyer. not accused. I just said. No, you accused You him are the of. man. Shame on Who you. are you? Who I are am you? sitting here. Who are Not you? standing in Why front you? of me. Why you? Get out of here if you don't like You this. cannot hold. Then You are sit the down. host here. Ask the You are not the question. host here. Okay, my question is that. Yeah. What way do you want it from the United States to do about this? To blow up Pakistan into bits. And for That's people what- like you, and for people like you to be sent to the same pimping center from where you See come. you downstairs. You'll see me downstairs? Is that a threat? No, we can. Is it a Punjabi Take threat? outside from this building. Oh, I'll get General Arora over here to We take can your get threat. outside this building. All right. Oh, your uncle surrendered in Dhaka, wasn't it? You resemble him. All right. ऐसे हथियार डाले थे, माफ कर दो हमको, बेगैरत, घटिया. You're third-rate people who do not even Don't deserve talk to me That again. is why. Okay. You Oh, I cannot- am talking to you. I'm You telling cannot do you. it here. You You're a cannot rocket do it science here. guy. You can't do it here. I am doing it here. Okay. You can't do anything about it. Okay, well. मिट गए पाकिस्तान को जूती की नोक पे रखने वाले, तबाह हो गए और बर्बाद हो गए पाकिस्तान के लिए ऐसा सोचने वाले। ये है तुम्हारा टेम्परमेंट, ये है तुम्हारा शॉर्ट टेम्पर होना। तुम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हो, तुम तो जानवरों के दरमियान बिठाने के भी काबिल नहीं हो। इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें बहुत ही सिधाए हुए कुत्तों के साथ बिठा के खाना खिलाया जाए। तुम एक इंतहाई बदनाम तरीन और बदतमीज और जाहिल आदमी हो जिससे मुंह लगना ही नहीं चाहिए। पंजाबी मुसलमान, ढाका, क्या गुफ्तगू है तुम्हारी? किस अंदाज से बात करते हो और क्या समझते हो कि तुम्हारी ये गुफ्तगू, तुम्हारा ये अंदाज पूरी दुनिया में देखा नहीं जा रहा? तारिक फतेह, तुम बेनकाब हो चुके हो।
اپنے اوپر سے یہ نقاب اتار دو انٹلیکچوئل ہونے کا. تم بھارت کے زر خرید غلام ہو, بالکل اسی طرح جس طرح چنگیز خان کسی بھی سلطنت پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں کے امیروں کو اور وہاں کی جو امارت کے اہل ہوتے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا. تم ایک غلام ہو, اس سے زیادہ تم کچھ نہیں ہو. تم ایک کارندے ہو, ایک اہلکار ہو, ایک کٹ پتلی, ایک تماش بین ہو جس کو کٹ پتلی بنا کر اس سے کھیلا جاتا ہے. اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, وقت نہیں ہے. تم بھارت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے, تم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے, اور میرا ایمان ہے کہ تم آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھارت میں سب کو ہندو بنانے کا کسی راجیشور نے عزم کیا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. چلے گا. خوش آمدید. بھارت میں یوں تو کوئی نہ کوئی شزرا روزانہ چھوڑا جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ وہاں پر ہوتا رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ وہاں مسیحی بھی محفوظ نہیں ہیں, سکھ حضرات بھی محفوظ نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو نکسل باغی ہیں جن کو ٹیملز کہا جاتا ہے وہ بھی جائے امن تلاش کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر ایک دھرم جاگرن پنچ ہے, انہوں نے ایک عجیب مہم چلائی ہے, ایک عجیب و غریب بات کی ہے. یہ دھرم جاگرن منچ کی ایک مہم ہے, راجیشور اس کے یعنی ادھیشک ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. عجیب بات ہے, اور بھارت میں کچھ نہیں ہو رہا, وہاں پر تو بڑا سیکولر بھارت ہونے کا ڈھونگ رچا جاتا ہے اور ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. لیکن ذرا دیکھیے سیکولر بھارت کا تار تار ہوتا ہوا چہرہ, بے نقاب ہوتا ہوا چہرہ, آپ بھی دیکھیے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. اس وقت کی بڑی خبر, دھرم جاگرن منچ کے نیتا راجیشور سنگھ نے ووادت بیان دیا ہے. راجیشور سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت سے 31 دسمبر 2021 تک وہ اسلام اور عیسائیت کو ختم کر دیں گے. راجیشور سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ 31 دسمبر 2021 تک بھارت میں وہ سبھی کو ہندو بنا دیں گے. تو پہلے سے ہی سنسد سے سڑک تک اس مدے کو لے کر پہلے سے ہنگامہ ہو رہا تھا. ابھی بھی راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں دھرمانترن کو لے کر پردھان منتری سے جواب مانگا جا رہا ہے, اور بیان کی ان سے امید کی جا رہی ہے. اور اس بیچ ایک نیا وواد جس میں کی کہا گیا ہے, راجیشور سنگھ نے کہا ہے اس کی اسمتا جگ چکی ہے, بھارت کی انترآتما جگ چکی ہے, بھارت ماتا جگ چکی ہے, اور ویبھو پراپت کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے, پراپت کر رہی ہے. آپ انتظار کریے, آپ دیکھتے جائیے. ابھی تو ہم نے 31 دسمبر 2021 is the last date for Christian change Islam in this country ہم نے طے کیا ہے. 31 دسمبر 2021 سے پہلے ہم بھارت میں اسلام اور عیسائیت کو ختم کریں گے. یہ ہمارا سنکلپ ہے, میرا سنکلپ ہے, میرے ساتھیوں کا سنکلپ ہے. ہم اس کام کو اوشیہ پورا کریں گے. نہیں کر پائے تو پھر ایک چرن اور بڑھا دیں گے, کنتو یہ ہمارا سنکلپ. پاگل ہو گئے یہ سب, ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, اور روزانہ ان کی جو گوشمالی میں کر رہا ہوں, اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے تمام اخباروں میں جب تک میرا نام نہ لکھا جائے ان کو چین نہیں آتا. تو اب یہ روزانہ جو ان کے کلپس آ رہے ہیں اور سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو رہا ہے, تو یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. ان کو خود نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھارت ایک ایسا ملک ہوا کرتا تھا جہاں پر مسیحی بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, مسلمان بھی رہتے تھے, سکون کے ساتھ, امن کے ساتھ. اب ان سے ان کا سکون چھین لیا ہے جب سے نریندر مودی نے آ کر اقتدار سنبھالا ہے, اور اس کے بعد سے تمام صورتحال آپ کے سامنے. راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور اس کے ساتھ ساتھ شیو سینا, ان کا اثر و رسوخ ہے نریندر مودی پر, اور اس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں. میں ٹائمز ناؤ کی کہانی کی طرف بڑھتے ہوئے ایک آپ کو خبر اور بتا دوں. یہ طارق فتح سے متعلق ہے. طارق فتح نے 6 جنوری کو, گو کہ اب ظاہر ہے کہ ہم 10 جنوری میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن 6 جنوری کو طارق فتح نے ایک سیمینار سے خطاب کرنا تھا, اور وہاں پر اس نے خاص طور پر بہت انتظام کیا ہوا تھا وہاں پر بکواس کرنے کا. کولکتہ میں یہ سیمینار ہونے والا تھا. اس کا ہم دعوت پہلے آپ کو دکھاتے ہیں, اسکرین پر آ رہا ہوگا دعوت نامہ, آپ دیکھیے. یہ دعوت نامہ تھا, اور اس دعوت نامے کے انوسار طارق فتح کو کولکتہ میں ایک سیمینار سے خطاب کرنا تھا جو بلوچستان اور کشمیر سے متعلق تھا.
बलूचिस्तान और कश्मीर से मुताल्लिक, लेकिन नक्स अमन के ख़तरे के पेश नज़र इसे मंसूख कर दिया गया। कहानी ये नहीं है, कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कोलकाता में एक ग्रुप है और इसकी जानिब से कश्मीर और बलूचिस्तान के मौजू पर ये एक सेमिनार मुनक़िद होना था, जिसकी 6 और 7 तारीख रखी गई थी। अब बुनियादी वजह बताई जा रही है कि अमन व अमान को ख़तरात लाहक हो गए, जो कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। लेकिन ये कोलकाता क्लब में एक स्वाधिकर बंगला फाउंडेशन नामी एक जाली तंजीम है, जो बाद में तहकीकात से पता चला कि एक जाली तंजीम है, एक पर बनाई हुई तंजीम है जो तारिक फ़तेह ने खुद बनाई थी। और कनाडा में ये लेटर हेड छपे थे और वहीं पर, बल्कि छपे भी नहीं थे, प्रिंटर से निकाले गए थे और ये स्वाधिकर तंजीम थी, ये बनाई गई थी। ये वैसे भी इसी के बैनर के तले तारिक फ़तेह कनाडा में और दीगर ममालिक में जब जाता है तो इसी तंजीम के बैनर तले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। और इसमें जिन लोगों को आना था उसमें साबिक़ मेजर जनरल रिटायर्ड G.D. बख्शी थे, और जो फ़ौजी जनरल इसमें मौजूद थे उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड J.M. मुखर्जी, सुशील पंडित, आरिफ मोहम्मद ख़ान और अभिजीत भट्टाचार्य, ये लोग मौजूद थे। और द सागा ऑफ बलूचिस्तान एंड कश्मीर इस पर मुनक़िद होना था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो सलूक तारिक फ़तेह के साथ किया गया था और स्टूडेंट्स इस पर पिल पड़े थे, इस वक्त तारिक फ़तेह के सबसे ज़्यादा वहाँ पर ख़िलाफ़ सिख हैं। मुसलमान इतना ख़िलाफ़ नहीं है जितना सिख इसके ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साने के बाद तारिक फ़तेह को वहाँ जाने से मना कर दिया गया और कहा भाई आप अपना सेमिनार मंसूख करें। तो ए तारिक फ़तेह, तुम भारत के गुण गाते हो, तुम कहते हो वंदे मातरम, तुम कहते हो भारत माता की जय, लेकिन भारत माता भी तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। टाइम्स नाउ की तरफ चलते हैं। टाइम्स नाउ को भी अचानक एक मरोड़ उठी है और उसने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार देने की कोशिश की है। अब बार बार वो अपने क्लिप में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। बहादुर अली नाम के किसी आदमी को इन्होंने पकड़ा है, उसका ताल्लुक इन्होंने लश्कर तैयबा से जोड़ा है। 1 साल से ये के साथ तफ्तीश कर रहे थे और इनके जो आईजी हैं, आईजी साहब की तरह गुफ्तगू सुनिएगा निखिल भाई की, वो फरमाते हैं कि 1 बरस तक हम इससे तफ्तीश करते रहे। 1 बरस बाद निखिल को पता चला कि ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता है। 1 साल के बाद, और इनके जहन से वायरलेस सेट नहीं निकल रहा, इनके जहन से डिकोडर्स नहीं निकल रहे हैं और ये इधर ही घूमे हुए हैं। जरा क्लिप देखिए तो आपको सब वाज़े हो जाएगा और मालूम हो जाएगा। दिखाइएगा जरा। The National Investigating Agency has filed a charge sheet against Bahadur Ali and 2 associates. Joining me right now is IG Alok Mittal. Thank you very much for speaking to Times Now. So let me begin by asking you, give us a sense of what are the details inside that particular charge sheet, and what clearly emerges at this point in time is that you all have been able to establish a clear Pakistani link. Today we have filed charge sheet against elite terrorist Bahadur Ali, who was caught last year in the month of July. And after a very detailed investigation, we have filed charge sheet today in Delhi's NIA Special Court. And the charge sheet clearly outlines the evidence which we have collected in the form of training which he received in POK, in the training camps, the logistical support he was provided, the way he and his associates were continuously given directions, their handlers were giving them directions, and the other support system which was there to help them to carry out terrorist attack. So when you all say that there's unflinching evidence to basically indicate that there is a clear Pakistani link, could you kindly elaborate, given the fact that you've also made a mention of the launching pad where they were basically given the equipment and the communications devices? Could you elaborate on what unflinching evidence are you really talking about? When he was arrested, that time we have recovered a wireless set, a GPS set from his possession, and then on his disclosure many other articles including firearms and hand grenades were recovered. So the investigation has established that he and his associates were given armed training in explosives in LET training camps across the border, and then there was a system which provided him logistical support to infiltrate into India. They were given grid references in coded form so that they could finally reach their destination, and then they were trained in carrying out the terrorist attacks. So everything bears the stamp of Pakistan. They have been trained there, they have been handled from there, and the handler was continuously in touch with them from, of course, Pakistan, and they were giving them directions. One final question before I let you go. There have been multiple attacks thereafter after Bahadur Ali was arrested. Has there been any connection with the other attacks, or as of now it is an isolated case where you have
arrested Bahadur Ali and 2 other associates who have been named in that particular charge sheet? As I said earlier, Bahadur Ali is a trained elite terrorist. There are many other attacks which have been carried out by elite terrorists. So there is a connect. There are some common grounds like the kind of wireless sets we have recovered, the GPS devices which we have recovered, the coded grid references which we have recovered. So there are certain items, certain points which have been common in all these cases. ذرا بتائیں گے نکل الوک متل بھائی کے بہادر علی کے پاس سے کیا ملا؟ جی وائرلیس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے جی پی ایس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے ہینڈ گرینیڈز ملے ہیں، اس کے پاس سے فائر آرمز ملے ہیں. اوکے جی ٹھیک ہے، یہ آپ نے سازش بے نقاب کی. یہ کون ہے بہادر علی؟ اس کے پاس سے وائرلیس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے جی پی ایس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے ہینڈ گرینیڈز ملے ہیں، اس کے پاس سے فائر آرمز ملے ہیں. لیکن یہ سازش کس نے بنائی تھی؟ لشکر طیبہ نے بنائی تھی. اس کے پاس سے وائرلیس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے جی سیٹ ملے ہیں، اس کے پاس سے فائر آرمز ملے، اس کے پاس سے ہینڈ گرینیڈز ملے. یہ جو سازش تیار کی گئی تھی یہ کیا بھارت کے خلاف بالکل تھی؟ لیکن اس کے پاس سے وائرلیس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے جی پی ایس سیٹ ملا ہے، اس کے پاس سے فائر آرمز ملے، اس کے پاس سے ہینڈ گرینیڈز ملے. انٹیلیجنس ایجنسی کیا کر رہے ہو آپ؟ مذاق کر رہے ہو؟ یہ کون ہے بہادر علی؟ ہم تو نہیں جانتے جو بھی ہے، لیکن ایک شخص کے پاس اتنی ساری چیزیں ایک وقت میں، ہینڈ گرینیڈز بھی اس کے پاس موجود ہیں، فائر آرمز، جی پی ایس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس وائرلیس سیٹ بھی ہے. یہ آدمی ہے یا پورا ٹرک چل رہا تھا؟ کون ہے؟ یہ سوچنا ہوگا. یہ آپ لوگوں کو یہ جب آپ ٹیلی ویژن پر یہ کارٹون نیٹ ورک بن کر آتے ہیں تو تھوڑا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے بول کیا رہے ہیں آپ، کیونکہ اب ہم آ گئے ہیں نا تو ایسے تو نہیں چلے گا. ہم تو آپ کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیں گے. جتنے آپ سے سوال کیے گئے ہر سوال کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وائرلیس سیٹ ملا ہے، اس کے بعد جی پی ایس سیٹ ملا ہے، اس کے بعد ہینڈ گرینیڈز موجود ہیں اور فائر آرمز موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں. اور لشکر طیبہ جو کہ آپ کو یاد ہے نام، مسعود اظہر کا نام آپ نے نہیں لیا، بھول گئے. حافظ سعید صاحب کا نام نہیں لیا، بھول گئے. آپ یہ بھی لے لیتے تو ادھر کہانی میں دم تو لایا. جے پی دتا سے ساری کہانیاں آپ لکھوا رہے ہیں، کچھ ایکتا کپور سے لکھوا لیں، کچھ سوپ تو چلے لمبا. یہ کہاں کہانیاں لکھوا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا خیال کریں، ذرا خیال کرنا چاہیے. کیونکہ ایک کہانی اور بنی ہے اور وہ کہانی برطانیہ میں بنائی گئی ہے، اور برطانیہ میں عجیب و غریب کہانی بنی ہے. برطانیہ میں ایک ایماندار رکن پارلیمنٹ کے خلاف اسرائیل نے سازش کی ہے، اور ایک عجیب و غریب سازش کی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ، ان کا نام ہے سر ایلن ڈنکن. یہ ایک کھرے رکن پارلیمنٹ ہیں اور یہ فلسطینی ریاست کے قیام کے زبردست حامی ہیں اور غزہ میں یہودی بستیوں کی تعمیر کو ایک بدنما داغ قرار دیتے ہیں، یہ برطانیہ میں رہتے ہوئے. اب ان کے خلاف اسرائیل نے ایک بڑی زبردست سازش کی. لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے ایک اہلکار ہیں، ان کا نام ہے شائی میسٹ. اور یہ شائی میسٹ جو ہیں انہوں نے الجزیرہ کے صحافی کو انہیں ہٹانے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا. صحافی نے وہ گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کر لی اور الجزیرہ کا صحافی بھیس بدل کر اسرائیلی سفارتکار شائی میسٹ سے ملا. شائی میسٹ نے کہا کہ وہ کچھ اراکین پارلیمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، جن میں فلسطین کاز کی حمایت کرنے والے سر ایلن ڈنکن بھی شامل ہیں. یہ ویڈیو ویسٹ لنڈن میں قائم اسرائیلی سفارت خانے کے بالکل سامنے قائم ایک ریسٹورنٹ میں اکتوبر 2016 میں ریکارڈ کی گئی. ذرا ویڈیو دیکھیں. Well, you know, if you look hard enough, I'm sure that there is something that we're trying to hide. Yeah, I have some of these. Let's talk about it. Okay. No, she knows we kept it one question. Yeah, it's good to remind me. The Deputy Foreign Minister. He's not doing You still want to No, he's doing a lot of programs. I thought we had Like a neutralized conspiracy. him a little bit, no? No. Boris is good. Boris? He's basically good. Yeah, he just don't care. He's busy with other issues. Boris is busy, you know. He is an idiot, but so far he became the Minister of Foreign Affairs without any kind of responsibility. So technically, if something will happen, that won't be his fault. ویڈیو سامنے آنے پر اسرائیلی سفارت خانے نے اسے ناقابل قبول قرار دیا اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ سے معافی مانگی. یہ بھی ہوتا ہے، معافی مانگی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ جو ویڈیو تھی یہ ابتدائی طور پر الجزیرہ نیٹ ورک ہے، نیوز نیٹ ورک ہے، اس کی طرف سے نشر کی گئی. پاکستان میں یہ ابھی تک نشر نہیں ہوئی تھی کیونکہ پاکستانی خبروں کی جو بنیاد ہے وہ ہے پینما ہوگا یا
राना सोलना का बयान होगा, तलाल चौधरी होंगे, आबिद शेर अली होंगे। हम चूँकि आपको पूरी दुनिया से खबरें देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा में, तो ये अल जज़ीरा गुज़िश्ता 6 माह से खुफिया मिशन जारी रखा हुआ था, जिसका मकसद ज़ाहिर ये करना था कि किस तरह बरतानिया में इसराइली सिफारतकार और एक बरतानवी सरकारी मुलाजिम जो ईमानदार और सीनियर बरतानवी सियासतदान हैं, उनका करियर तबाह करना चाहते थे। अल जज़ीरा अपनी 4 अक़सात पर मुश्तमिल ये तहक़ीक़ाती रिपोर्टें 15 जनवरी से बाकायदा नशर करेगा। अभी हमने आपको ये थोड़ी सी रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन 15 जनवरी से अल जज़ीरा पर ये रिपोर्ट्स बाकायदा नशर होंगी। आपको एक और हम ख़बर बताते हैं, उसके बाद पकड़ा गया की तरफ चलते हैं। भारत में एक अपाहिज के साथ क्या सलूक किया गया? एक अपाहिज, एक भारतीय पुलिस उसको क्यों मार रही है? वो एक स्टेशन पर मौजूद है, लेकिन भारत की जो रेलवे पुलिस है उसने उस अपाहिज को इसलिए मारा क्योंकि वो मुसलमान था। दूसरी वजह ये थी कि वो माजूर है, और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने एक सेल फोन चुरा लिया है। एक माजूर आदमी जिसकी बैसाखियाँ ज़मीन पर गिरी हुई हैं, वो कैसे सेल फोन चुरा सकता है? यहाँ तक कि वो चैनल भी खिलाफ हो गया और वो कहने लगा ये तो जुल्म हो रहा है, ये तो बर्बरियत हो रही है। उसे किक्स मारी जा रही हैं, उसे लातें मारी जा रही हैं। आपको भारतीय बर्बरियत और नंगी और बर्बरियत और जो उनकी जुनूनियत है उसका एक सबूत दिखाते हैं इस क्लिप के जरिए। Shocking visuals that are coming in from Odisha's Balasore, where an RPF personnel is seen beating up a disabled man at the railway station. The railway police force personnel allegedly said that a differently abled man stole a passenger's phone, and that is why he was mercilessly beaten up at a railway station there in Odisha. Samya is with me on the phone line. Samya, we're playing up these visuals. All right, we'll try and reconnect that line with Samya, but look at these visuals that are coming in from Odisha in Balasore, where the railway protection police force personnel are kicking, mercilessly beating up this old man. He is differently abled, and he allegedly stole a mobile phone from a passenger, and when he was caught, he was mercilessly being kicked and thrashed by the people around him. And the people who are thrashing him are the personnel of the railway protection force. Now, this is that shocking video that has exposed the apathy that is meted out to this old man. He is differently abled, and he was allegedly accused of stealing a mobile phone. टाइम्स नाउ ने खबर बताई तो सही, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका नाम मोहम्मद मुश्ताक था। इसका नाम मोहम्मद मुश्ताक था, और रेलवे स्टेशन पर इसे जिन एहलकारों ने मारा वो हिंदुत्व नज़रिए के हामी थे, और वो इंतहा पसंदी की बुनियाद पर इस पर तशद्दुद कर रहे थे। बैसाखियाँ इसकी ज़मीन पर गिरी हुई थीं और वो उस पर जुल्म कर रहे थे। इनका ताल्लुक़ था वहाँ की रेलवे पुलिस से, और वो जो जुल्म कर रहे थे आपने देखा। आखिर में आपको जाते जाते हम भारतीय फ़ौजी की फ़रियाद सुनाते हैं, और बस ये फ़रियाद आप सुन लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि नितिन यादव जो कि बीएसएफ का एहलकार था, सही तो कहा था ओमपुरी ने, ओ भाई जब फौज में गए क्यों थे जब मरने से डर लगता है। ज़रा देखिए, ये छोटे दिल के सहमे हुए, चूजे से भी ज़्यादा कमज़ोर दिल रखने वाले ये भारतीय फौजी क्या पाकिस्तान के शेरों का और शाइनों का मुकाबला करेंगे? चूजे जैसा दिल है, बुज़दिल हैं, कावर्ड हैं, इस काबिल नहीं है कि इनको फौजी कहा जा सके। यही बीएसएफ के एहलकार हैं। ज़रा से कारगिल पर क्या गए, इनकी जान निकल गई। हमारे मुशर्रफ ने तो गुद्दी से पकड़ लिया था। ज़रा देखिए। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर करते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर हैं। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते,
क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवाओ। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जाँच करे, देखे। BSF के जवान हैं, बटालियन 29 है। इनको मेरा मशवरा है, आप बोल में आ जाएं, आपको हम एक पोर्टल अलॉट कर देंगे, तो जो चाहें आप खाना मंगवा सकते हैं। अचार भी मिल जाएगा आपको, दालें भी अच्छी मिल जाएंगी, उसमें हल्दी नहीं होगी। पोर्टल अलॉट होगा आपको, आप खाना मंगवा सकते हैं। बोल आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको बहुत सुकून, शांति और अमन सब मिलेगा। और अगर आप बोल नहीं आना चाहते तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आप जब चले जाएँ, वहाँ पर रोज़ाना हम दोपहर को खाना खिलाते हैं। वहाँ भी अगर नहीं मिले तो ईदी सेंटर मौजूद है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, पाकिस्तान आइए, खाना मिल जाएगा आपको। भूखे अचार खाना है, हाँ आज आज शाबाश, अचार आपको खिलाएंगे। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। BSF के जवान के लिए पप्पी।